Good morning, students. Welcome you all after your summer vacation. Hope you enjoyed well. So, today we will start our topic wherever we left it. Okay, so in previous class we had completed the topic demonetization. Okay, so in today's class we will start a new chapter of the Indian economic development, that is rural development. Okay, so in this chapter what we have to study, first of all we should know what is rural development, in which challenges or key issues of the rural development, what are the different issues which is related to the rural development. Next is rural credit, classification of rural credit needs, sources of the rural credit, rural banking, a critical appraisal. Next topic is agricultural marketing system, measures initiated by the government to improve the agricultural marketing system after the independence. What are the different measures which is taken by the government to improve the agricultural marketing since or after the independence? Next is problem or defects of, what are the different problems, what are the disadvantages of the agricultural marketing in India. Next is what are the different suggestions to improve the agricultural marketing system. Next one is alternative marketing channel, and there should also be some other channel which is alternate to the agricultural marketing. So we will also study these topic. Next one is diversification in agriculture, in which diversification of crop production, diversification of the production activity or the employment. Next one is sustainable development. You have already studied what is sustainable development in your social science subject. What is social development and the organic farming benefits, what are the different benefits of the organic farming, as well as challenges of the organic farming. Okay, so in this chapter, in the chapter 6 of your Indian economic development, that is rural development, we will study these topics. Okay, so let's start with the introduction. In chapter 4, what is your chapter 4? Poverty. Okay, we studied that majority of the poor live in the rural areas where they do not have access to the basic necessities of life. Agriculture is the major source of livelihood in the rural sector. Mahatma Gandhi once said that the real progress of India did not mean simply the growth and expansion of the industrial urban centers, but mainly the development of the villages. This idea of village development bring out the center of the overall development of the nation is the relevant even today. More than two-thirds of the India's population depends upon the agriculture that is yet to become productive enough to provide for them. One third of the rural India still lives in the abject poverty. Abject means extreme poverty. So that is why we have to see a developed rural India if our nation has to realize real progress. In this chapter, we will study about the rural development, rural credit, agricultural marketing, diversification of agriculture, etc. Okay, so yes. In chapter 4, we studied that the majority of the poor live in the rural areas where they do not have access to the basic necessities of life. Okay, हम लोग ने चैप्टर 4 में क्या पढ़ा है? हम लोग ने चैप्टर 4 में ये देखा था कि जो मेजॉरिटी ऑफ दी पुअर है, मोस्ट ऑफ दी जो पुअर होते हैं हमारी कंट्री के, इंडिया के, वो कहाँ पे रहते हैं? दे लिव इन विलेज. वो क्या रहते हैं? विलेज में रहते हैं, वेयर दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. जहाँ पे जो भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ है,
फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ। तो उस एरिया में, विलेज में, उनको ये सारी प्रॉपर बेसिक नेसेसिटीज़ जो लाइफ की हैं वो भी मिलती नहीं है, वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम द चैप्टर 1 दैट द एग्रीकल्चर क्या है, वो मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का बेसिकली इन द रूरल एरिया। जो रूरल एरिया में रह रहा है उसके लिए क्या है, ये बेसिक और मेजर सोर्स है फॉर द अर्निंग, फॉर द लाइवलीहुड एक्सेट्रा। So Mahatma Gandhi once said that the real progress of India did not mean simply the growth and expansion of the industrial urban center, but mainly the development of the villages. Okay, महात्मा गांधी ने एक बार ये बोला था कि जो रियल प्रोग्रेस है इंडिया का, कंट्री का, जो रियल प्रोग्रेस है वो अगर कोई इंडस्ट्रीज़ के अर्बन सेंटर्स को डेवलप कर दे, उनका हम ग्रोथ कर दे, एक्सपेंशन कर दे, तो वो उस पर क्या है, ट्रस्ट नहीं करते थे कि बस इसको अगर हम ग्रोथ और एक्सपेंशन कर देंगे तो कंट्री का रियल प्रोग्रेस हो जाएगा। नहीं, बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस, कि विलेज का डेवलपमेंट करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंट्री की क्या है, वो विलेज में ही रहती है, और लोग क्या है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं, और दे ऑल आर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर देयर। तो उनका ये कहना था कि अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी है हमें कंट्री में, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें रूरल एरिया से स्टार्ट करना पड़ेगा। अर्बन एरिया में तो दे ऑलरेडी क्या है, प्रोग्रेस में हैं, उन्हें पता है कि वो स्ट्रगल करना है, उन्हें अगर अपनी लाइवलीहुड को इंक्रीज़ करना है सो दे हैव टू स्ट्रगल। बट इन द रूरल एरिया में क्या है, उन्हें बताना है कि प्रोग्रेस करना है या किसी भी कंट्री का एक्सपेंशन होना है, सो इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन यू, कि अगर आप लोग का डेवलपमेंट होगा, आप लोग का ग्रोथ एक्सपेंशन होगा, तब मतलब पूरे होल कंट्री का ग्रोथ होगा। सो मोर देन 2/3 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन, ओके, अगर पॉपुलेशन है तो उसका 2/3 इंडियाज़ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर। मीन्स 2/3 पार्ट जो है, 1/3 पार्ट जो है वो किसी और सेक्टर पे बेस्ड है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल और सर्विस, बट 2/3 पार्ट जो है वो स्टिल क्या है, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, दैट इज़ येट टू बिकम प्रोडक्टिव इनफ टू प्रोवाइड फॉर देम। और स्टिल ये क्या है, ये उतना प्रॉपरली क्या है, प्रोडक्टिव नहीं हो पाए, इनका ग्रोथ स्टिल इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। 1/3 ऑफ द रूरल इंडिया स्टिल लिव इन दी एब्जेक्ट पॉवर्टी, और 1/3, 2/3 में से 1/3 अभी ऐसे हैं जो स्टिल वो एक्सट्रीम पॉवर्टी पे, मीन्स स्टिल दे आर पुअर। ओके, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू सी अ डेवलप्ड रूरल इंडिया। ओके, इसलिए हमें क्या है, हमें इंडिया को बेसिकली रूरल एरियाज़ को क्या है, डेवलप्ड करना है, इफ़ आवर नेशन हैज़ टू रियलाइज रियल प्रोग्रेस। अगर हमारे कंट्री को, नेशन को रियल प्रोग्रेस करना है, मींस ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से करना है, कि शो कर देना है कि हमारी कंट्री में ग्रोथ हो रहा है और हम कर नहीं रहे हैं, बट अगर रियलिटी में करना है तो रियल प्रोग्रेस भी कहाँ पे है, कंट्री का वो पुअर जो है, बेसिकली जो रूरल एरियाज़ में पीपल रह रहे हैं, उनका डेवलपमेंट करना। So in this chapter what we have to study about the rural development, rural credit, agricultural marketing, diversification of agriculture, etc. Okay, so we will discuss everything one by one. Okay, first of all, what is the meaning of the rural development? So rural development is a comprehensive term. It focuses on action for the development of the areas that are lagging behind in the overall development of the village economy. Although there is decline in the contribution of the agriculture sector to the GDP, the population dependent upon the agriculture sector still has not exhibited so much decline.
one of the major reason to decline in contribution of agriculture to GDP is fall in public investment in agriculture since 1991. So rural development covers agriculture development as well as those aspects which improve the living condition of people in the rural areas. Rural development is a comprehensive process which targets betterment in all aspects of rural areas. Thus, developing agriculture implies improvement of the rural areas. Okay, so rural development is a comprehensive term. It is comprehensive, or the it is very broader term. Okay, so it focus on the action for the development of the area that are lagging behind in the overall development of the village economy. So ये रूरल डेवलपमेंट बेसिकली किस पे फोकस करता है? डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, उन सारे एरियाज का डेवलपमेंट दैट आर लैगिंग बिहाइंड। मतलब वो क्या है? वो फॉल और क्या है, वो उस एरिया से, उस डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा पीछे हैं, दैट आर लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकॉनमी। विलेज इकॉनमी के ओवरऑल डेवलपमेंट में जो एरिया, जो सेक्टर बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बेसिकली रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि उन एरियाज़ का डेवलपमेंट करना। ओके, सो इट इज़ बेसिकली इट फोकसेस ऑन द एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, उन सारे एरियाज़ का डेवलपमेंट करना दैट आर लैगिंग बिहाइंड, मीन्स दैट आर स्टिल रिमेन द बिहाइंड। अभी भी वो क्या है, उस ग्रोथ से, उस एक्सपेंशन से बहुत ज़्यादा पीछे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकॉनमी। ठीक, सो although there is a decline in contribution of agriculture sector to GDP, okay, as we know कि जो भी GDP का पार्ट है, जो भी GDP में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से अब हो रहा है, वो क्या है, डे बाय डे वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। स्टिल द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर स्टिल हैज़ नॉट एग्जिबिटेड सो मच डिक्लाइन। मतलब एग्रीकल्चर से जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो तो डिक्रीज होता जा रहा है, बट अभी भी जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर सेक्टर पे वो डिक्लाइन नहीं हो रही है। व्हेन वी टॉक अबाउट इन द प्रेजेंट एरा की बात करते हैं, तो वो जो पॉपुलेशन है दैट आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर, स्टिल इट इज़ नॉट डिक्लाइनिंग, ऑल्दो एग्रीकल्चर सेक्टर इज the contribution of the agriculture sector is declining day by day, basically in the GDP में वो क्या होता रहा है, अब क्या हो रहा है कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। स्टिल जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेस्ड है। यस, तो one of the major reason of decline in contribution of agriculture to GDP to fall in public investment in the agriculture since 1991। okay, जो इसका बेसिक रीज़न है कि क्यों ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो क्यों डिक्लाइन होता जा रहा है। इसका एक बेसिक रीज़न है, आपको याद होगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई थी एलपीजी, तो उसमें ज़्यादा किसको फोकस किया गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर को, तो इन पे फोकस किया गया था। और एग्रीकल्चर क्या था, वो लैग बिहाइंड होता चला जा रहा था, वो पीछे ही उसका प्रोग्रेस, और वो एकदम स्लो हो गया था, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट क्या थी, उन पे इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दी थी। तो सिंस 1991 से जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का वो बेसिकली डिक्लाइन हो गया था। सो रूरल डेवलपमेंट कवर्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एज वेल एज दी दोज सब्जेक्ट विच इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल इन द रूरल एरिया। सो रूरल डेवलपमेंट क्या कवर करता है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मीन्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट एज वेल एज ऑल दोज आस्पेक्ट, उन सारे एस्पेक्ट्स को विच इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल इन द रूरल एरिया,
उन सारे एस्पेक्ट्स को भी लेता है जो जो रूरल एरिया में पीपल रह रहे हैं उनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव कर सके। इट डजेंट मीन कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नहीं, उन सारे एरियाज़ को भी रूरल डेवलपमेंट में हम इंक्लूड करेंगे जो किसी भी नॉर्मल पीपल का, जो पीपल है, जो नेशन में पॉपुलेशन है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी वो इंक्रीज़ करे। सो रूरल डेवलपमेंट is a comprehensive process, okay, it is very broader concept, okay, so which target betterment in all aspect of the rural area, जो किसकी बात करता है कि जो पूरे इंडिया का, वो बेसिकली फॉर द विलेजेस एरियाज का हर एक एरिया में, हर एक एस्पेक्ट में क्या हो, डेवलपमेंट हो। ये नहीं कि बस एक एस्पेक्ट को लेके चल रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, वो सारे ही ऑल एस्पेक्ट की बात कर रहा है कि डेवलपमेंट ऐसा होगा कि हम किसी भी रूरल डेवलपमेंट में कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं होगा जिसको हम लोग विलेज में छोड़ देंगे, हमको सबका डेवलपमेंट करना है। सो डज डेवलपिंग एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, ठीक है, डेवलपिंग एग्रीकल्चर, अगर हम लोग एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हैं, इट सिंपली मीन्स इम्प्रूवमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस और द की इश्यूज ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। क्या कौन कौन से डिफरेंट चैलेंजेस एज वेल एज इश्यूज हैं विच द रूरल डेवलपमेंट इज फेसिंग, बेसिकली मीन्स कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो रूरल डेवलपमेंट के लिए वो फेस कर रहा है। सो रूरल डेवलपमेंट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रूरल लाइफ। सम ऑफ द एरियाज विच आर चैलेंजिंग एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर द डेवलपमेंट इन द रूरल एरिया इंक्लूड development of the human resources, second one is land reform, third one is development of infrastructure. So rural development attempts to improve all aspect of the rural life, ठीक है, वो रूरल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को क्या करेगा, कवर करेगा और उसकी डेवलपमेंट करेगा। सम ऑफ द एरियाज विच आर चैलेंजिंग एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट रूरल इंडिया, ठीक है, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे चैलेंजिंग एरियाज़ हैं जिनमें क्या है, इनिशिएटिव लेने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो दीज ऑल आर डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज की ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उनको डेवलप करना है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर बेसिक इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीड टू बी डेवलप्ड एक्सटेंसिवली। मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये क्या है, बेसिक इनपुट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, विच इज़ नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया, ठीक है। ये क्या है, एकदम बेसिक इनपुट है कि अगर हमको गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो दैट they all are able to do their work effectively and efficiently. If they do their work with effective manner, so the productivity of the agriculture will also increase. Okay, so it includes basically how we will develop the human resources. So it is basically focuses on the literacy. Okay, we will provide the education to them, more specifically फीमेल लिटरेसी, मीन्स फीमेल लिटरेसी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहा है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, स्किल्स की जो है उनके, अभी ऐसा क्या है, हम लोग को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कौन से स्किल है और हमको करना कुछ और होता है और हम करते कुछ और हैं। सो ये क्या है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट वी वांट, कि हमें करना क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करना है, ठीक। तो जो भी आपके स्किल्स हैं उसको क्या करना है, इन्हांस करना है, तो स्किल्स का डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट इज कैसे डेवलपमेंट होगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, थ्रू दी
health, addressing both sanitation and public health. Means public health facilities मिले उन्हें, dispensary as well as hospitals मिले, और उन्हें sanitation की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, sanitation उनका प्रॉपर sanitation हो, ठीक है. सो ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द एजुकेशन एज वेल एज द health services. Okay, so it is the one of the challenges for the rural development. First of all, development of the human resources. Okay, now the next one is land reform. I think you are very well known, you are very familiar to the term लैंड रिफॉर्म. ओके, नहीं याद है तो एक बार याद करिए कि क्या होता है लैंड रिफॉर्म. सो लैंड रिफॉर्म का सिंपली मीन्स रीएलोकेशन ऑफ द लैंडलेस पीपल. मीन्स जो भी लैंडलेस पीपल है उनको क्या हो रहा था, लैंड रिफॉर्म के थ्रू लैंड प्रोवाइड की जा रही थी, एलोकेट करना था सारा, ठीक है. इन्वॉल्व द चेंजिंग द लॉज, रेगुलेशंस और कस्टम रिगार्डिंग द लैंड ओनरशिप. उनकी ओनरशिप, लैंड ओनरशिप के अकॉर्डिंग डिफरेंट लॉज को चेंज करके उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाता, उन्हें लैंड प्रोवाइड किया जा रहा था. सो दीज ऑल आर दी रीएलोकेशन ऑफ द लैंडलेस पीपल. जो भी लैंडलेस पीपल हैं जो किसी और के अंडर काम कर रहे हैं, वो सब क्या करना था, उसको रिमूव करना था. जो भी एबोलिशन हो रहा है, इंटरमीडियरीज जो और ज़मींदार आ जा रहे हैं, तो उनका क्या करना था, उनको भी एबॉलिश करना था. Okay, so land reform are very urgently required because land is very strategic in rural development. So इसमें क्या करना था कि बहुत ज़्यादा अर्जेंटली इसमें हमने चेंज करना था, बिकॉज लैंड रिफॉर्म आर रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के लिए लैंड रिफॉर्म में इम्प्रूवमेंट चाहिए था. अगर हमारी लैंड क्या है, फर्टाइल नहीं है, फर्टिलिटी उसमें नहीं है, और हम उसमें प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कुछ भी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ नहीं करेगी. सो इन दैट केस हमारी जो भी लैंड है जिस पे प्रोडक्शन करना है, इट शुड बी टू मच फर्टाइल. मीन्स उसमें वो क्या होनी चाहिए, वो फर्टिलिटी उसमें होनी चाहिए. एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज. जो भी हमारे इंटरमीडियरीज आते हैं, अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली मार्केट में नहीं जाके किसको हम लोग देते हैं, ज़मींदार्स को. जो भी इंटरमीडियरीज हैं तो उनको भी क्या करना है, एबॉलिश करना है, सो डैट जो भी एक सिंपल सा फार्मर है जो प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे एक्चुअल अमाउंट मिल सके जो भी उसने प्रोड्यूस किया है. नेक्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल. जो भी सॉइल के टिलर हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी जो भी राइट्स है उसको भी प्रोटेक्ट करना. ये नहीं कि जो भी उनको कोई एक प्रॉपर राइट मिल रखी है कि उन्हें प्रोडक्शन इतना करना है, उन्हें वो डायरेक्टली मार्केट में सेंड करना है, तो ये सारी उनकी जो भी राइट हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना. नेक्स्ट वन इज़ एलिमिनेटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कल्टीवेटर्स. जो भी कल्टीवेटर्स हैं उनका जो भी एक्सप्लॉयटेशन है डिफरेंट फार्मर्स को, टिलर्स को, उसको भी क्या करना, एलिमिनेट करना. ठीक है. सो इट विल ऑल आर इंक्लूडेड इन लैंड रिफॉर्म. मीन्स लैंड में कैसा रिफॉर्म आ रहा है, तो रीएलोकेशन. हम जो भी लैंडलेस पीपल हैं उनके लिए क्या करेंगे, रीएलोकेट करेंगे. ऐसा नहीं कि जो प्रायरली चल रहा था वैसे ही चल रहा है. एबॉल्यूशन हो रहा है इंटरमीडियरीज़ का, इंटरमीडियरीज़ का क्या हो रहा है, इंटरप्शन हो रहा है. वो जो भी फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लेके चले जा रहे हैं. नहीं, इसमें क्या है, इसको एबॉलिश करना है. जो उनकी राइट्स उनको मिली है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, एज वेल एज जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको भी इम्प्रूव करना है. मीन्स लैंड को क्या करना है, लैंड ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो, एज वेल एज वो अच्छे सीड्स का यूज़ करे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करे, सो दैट दे कैन इंक्रीज मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी. ओके, नाउ द नेक्स्ट one is development of the infrastructure. Infrastructure includes those facilities which are important to increase overall production. Infrastructural development refers to the development of the irrigation, electricity, transport facility, credit marketing, financial assistance, transport facilities, construction of the village, roads and feeder roads to nearby highway, facilities for the agricultural research and extension,
इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। ओके, सो जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं कि पूरा जो भी डेवलपमेंट है कंट्री का वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होता है कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, हेल्थ मिल रहा है। दीज ऑल आर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड दोज फैसिलिटीज़ विच आर इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्शन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी फैसिलिटीज़ आती हैं जो ओवरऑल प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इफ़ the country want to overall increase in the overall production, so that the government of the any country, they have to provide the proper infrastructure. Infrastructural development refers to the development of इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में क्या क्या आएगा? प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ हो, मीन्स रूरल एरियाज में अगर कोई प्रोडक्टिविटी कर रहा है, सॉरी प्रोडक्शन कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी तो वो होनी चाहिए फैसिलिटी, सो दैट वो क्या कर सके, वो अपने उसमें अगर उसको अपने लैंड में पानी को करना है, एज वेल एज इरिगेशन की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी से वो कोई मशीन्स को ऑपरेट कर रहा है तो क्या करे, उसको उस टाइम उस टाइम उसको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होगी। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। मीन्स वो कुछ प्रोड्यूस कर लिया है और उसको अब क्या करना है, मार्केट में रीच आउट करना है। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। क्रेडिट मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। मीन्स अगर कोई भी फार्मर है वो एबल नहीं है कि कुछ भी प्रोड्यूस कर सके, वो क्या करेगा उस कंडीशन में, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिफरेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी उनको प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें वो क्या कर सके, कोई भी बैंक में जाके क्या कर सके, वहाँ से वो लोन लेके प्रोडक्शन कर सके। सो डिफरेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस और क्रेडिट मार्केटिंग, क्रेडिट पे वो मार्केटिंग कर सके। मीन्स आज वो पेमेंट ना करके इन फ्यूचर पीरियड में भी वो पेमेंट कर सकते हैं। सो दीज ऑल फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड। Next one is transportation facility, construction of the village road and feeder roads to nearby highway। Means जो भी मार्केट है, ठीक है, मार्केट के पास जो भी उसके रोड्स हैं, जो भी विलेज के रोड्स हैं, वो क्या होने चाहिए, उनका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रोड एकदम बेकार पड़ी रखी है और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसे उनको मिल पाएगी। उनका एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर होगा, एज वेल एज टाइम भी कंज्यूम होगा। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ दी रोड्स। उनके पास रोड अच्छी हो जो हाईवे से ईज़िली मिल सके। उनकी अगर उनके विलेज में वो ऐसी प्रॉपर अगर रोड बना देते हैं कि वो सीधे डायरेक्टली वो हाईवे से मिल जाएगी, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, फार्मर्स के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। सो ऐसी फैसिलिटीज़ भी डेवलप करनी है। नेक्स्ट वन इज़ फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन। अभी क्या है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड डिफरेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जैसे अभी तो आप लोग को इन नेशनल में क्या आता था कि उन्हें क्या था, डिफरेंट काइंड ऑफ कृषि दर्शन टाइप्स के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते थे। गवर्नमेंट क्या करती थी, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स को लॉन्च की है कि एडवर्टीज़मेंट और टीवी में उनको क्या किया जाता है, उनको शो दिखाया जाता है कि आप किस पे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्शन करिए, किस प्रोडक्ट को, किस क्रॉप को प्रोड्यूस करिए। सो ये सारी क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू दी गवर्नमेंट बेसिकली इन दी agriculture। Okay, next one is information dissemination। means whatever the different information, it should be too much propagated। ये नहीं कि इंफॉर्मेशन को हम एक जगह पे हॉल्ट कर दिए, नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, उसको क्या है, कम्युनिकेशन के थ्रू हम उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। सो दिस इज़ ऑल्सो द इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन। मीन्स इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करना। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी।
One third of the rural India still live in the abject poverty. That is why we would like to see a developed rural India. For this, special measure for alleviation of poverty must be undertaken. Efforts should be made to bring about the significant improvement in the living conditions of the weaker sections of the population. Emphasis should be laid on access to productive employment opportunities. Okay, so as we know that one third of the rural India still lives in the extreme poverty. अभी भी वो लोग क्या है, extreme poverty में हैं. That is why we would like to see a developed rural area. इसलिए क्या है, हमें देखना है कि हमारी कंट्री क्या है, वो डेवलप्ड है. सो फॉर दैट केस स्पेशल मेजर्स should be taken for the alleviation of the poverty. So different measures, for example हम लोगों ने different policies programs पढ़े थे ना, मनरेगा और राजीव गांधी रोजगार गारंटी. So different kind of alleviation program should be introduced by the government to decline the poverty. Next one is effort should be made to bring about the significant improvement in the living condition of the weaker section of the population. So different kind of effort should be done by the गवर्नमेंट सो दैट द जो वीकर सेक्शन है हमारी कंट्री के पॉपुलेशन में, जो हमारी कंट्री में वीकर सेक्शन है, दैट दे आर नॉट एबल टू फुलफिल हिज और हर बेसिक नेसेसिटीज़, तो उनको क्या है, अगर डिफरेंट एफर्ट्स किया जाएगा, मीन्स उनको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन, हेल्थ की, तो फूड को उनको क्या है सब्सिडीज़ पे मिले, तो उनका क्या है जो वीकर सेक्शन है वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज emphasis should be laid on the access of productive employment opportunity. Okay, different emphasis should be done for the employment opportunities कि different employment opportunities be generate हो, so that people will able to do more and more employment. That's why they will develop and they can increase their standard of living also.